welcome you all. I'd like to welcome you all for Art Explore. This is the eighth session of Art Explore, and mostly who have joined, you all know already about Shield Art, which is a non-profit initiative, and we have been working for 5 years with small events where we can help and come or engage with young artists. So this is during the pandemic. This is first time we are involving with lots of young curators as well. So I won't take much time because the time frame is also limited and there are lots to discuss. So for Art Explore 8 today we have Muskan Singh. She is a Delhi-based artist who did her BFA from Patna University in 2014 and did her master's from Shiv Nadar University, Greater Noida in 2018. Of course, we all can read her bio. I'm not going into detail of all the exhibitions that she has participated, but she has done a lot of exhibitions, participated in important residencies. And to just name a few, recently she been a part of the Festival of Video Art by Indian Contemporary Artists, Godrej India Cultural Lab, Mumbai, and also in 2019 the Festival of Video Art by Indian Contemporary Artists at KNMA, Delhi. And recently, in this year only, she had been to Utsa Foundation residency in 2020, and in 2018 also she had been a part of One Santi Road, Bangalore. So, and there are more to her credit, but we are not going detail. And today she will be in conversation with Parivartan Mohanty, who is also an artist based in Delhi, and he did his BFA from Dolly College of Art and Craft Bhubaneswar and MA in History of Art from National Museum, New Delhi. He has also participated as an artist in many important exhibitions. He was also a recipient of Emerging Artist Award of FICA in 2011. And he was the curator of Students Biennale, which is a part of Kochi Muziris Biennale in 2016. He is also a recipient of the Visiting Artist Fellowship at South Asian Institute, Howard University, Boston in 2016. And there are much more to his credit. He also keeps interest in writing for art also apart from his art practice. Recently, last year, I think he had his solo in Vadera Art. So there are a lot to his credit. He keeps interest in writing as an artist, performance, and many more things. So we are not going into the depth of all those. So I would like to hand over soon to Parivartan so that we don't run out of time. So if everything okay with Parivartan, can you hear me? Yes. Yeah. So I won't take much time and just want to hand over to you so that you get ample time to do the session. Okay. Thank you, Thank you. Pranita, for organizing all these talks and all. Yeah. Thank you. मैंने Thank सारा you. आपका almost देख चुका हूँ. अच्छा अच्छा, थैंक यू And thank you, Muskan, मुझे invite करने के लिए इस conversation में करने के लिए. और ऑडियंस को भी बहुत बहुत शुक्रिया. मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग काफी क्वेश्चंस पूछेंगे. तो 1 घंटा है हमारे पास. मैं सोच रहा हूँ कि टॉक को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए. पहला हिस्सा है कि मुस्कान एक 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर एक प्रेजेंटेशन देगी उसके काम के बारे में. देन लाइक आई हैव सम क्वेश्चंस, मैं उनको पूछूंगा, लेकिन मुस्कान के टॉक के बाद हम फ्लोर ओपन कर देंगे और वहाँ पे कोई भी सवाल पूछ सकता है और शायद प्रणमिता उसको क्यूरेट कर सकती है वो सवाल को. अगर टाइम बचता है तो ठीक है, वरना मेरे पास भी कुछ प्रिपेयर क्वेश्चन ऑलरेडी है, तो हम देखेंगे कि सारा पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है, और ऑडियंस का मतलब हम लेके साथ में चलेंगे क्वेश्चंस. तो मुस्कान अभी शुरू करते हैं फिर तुम्हारा प्रेजेंटेशन से. मैं पहले शेयर स्क्रीन करती हूँ. ओके मुस्कान, लेट मी मेक यू द होस्ट. प्रणमिता मैम, आप मुरारी झा को होस्ट बना दीजिए. मैं दूसरे डिवाइस पे शेयर करना चाह रही हूँ स्क्रीन. हाँ, एक बात मेंशन करना था कि हम हिंदी में बात करेंगे,
और आप लोग हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी सवाल हाँ, पूछ सकते लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इंग्लिश और भी कोई रीजनल अगर हम एड्रेस कर सकते हैं तो वी विल ट्राई। अच्छा मुस्कान, आई ऑलरेडी मेड यू द एडमिन, सो होस्ट तुम्हें अभी मुरारी मुरारी को बनाना पड़ेगा। ओके। गो टू मुरारी, फिर वहां पे आपको हाँ ओके ठीक है, बना दिया मैंने। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए मुझे, और मेरे काम के बारे में टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच परिवर्तन। तो ये मैं अपना प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना चाह रही हूँ। मेरा अभी ऑल अराउंड जो काम है वो कोकून से रिलेटेड है। अभी जो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो वो कोकून के ही अराउंड मेरा काम चल रहा है लॉकडाउन के पीरियड। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले मेरा काम जनरली कहाँ से आता है। तो मेरे काम कहीं ना कहीं एक लिटरेचर और पोएम से आता है, जो उस वैल्यू की बात करता है जहाँ पर शब्द अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देता है, और वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकल कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है जिसे पर्सनल साइकी ही उसे ट्रेस कर पाता है। और अगर हम अपने काम को देखें तो मेरा काम कहीं ना कहीं फोक और लिटरेचर से, फोक और कल्चर से भी आता है, जो पॉलिटिकल सोसाइटी को एक व्यंग्यात्मक रूप से रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सवाल भी है और उसे समझने की कोशिश भी, जहाँ पर जो एक कहीं ना कहीं एक ह्यूमर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली मेरे काम की जो बनावट है उसमें कोई मास्टरी नहीं होती, वो एक रॉ फॉर्म में होता है जो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। पर इसके डिस्ट्रॉय को मैं एक निर्माण की तरह देखती हूँ, जहाँ पर एक डिस्ट्रॉय तो है पर कहीं ना कहीं सीरियसनेस भी है। कन्वर्सेशन जहाँ से स्टार्ट होता है बनना, तो तो इस डिस्ट्रक्शन को मैं एक निर्माण की तरह देखती हूँ। तो मुझे वहाँ पर अगर हम अपने काम के बारे में बात करें तो मैं परसाई का छोटा सा व्यंग पढ़ना चाहूँगी कि वो कैसे इकोलॉजी टर्म की बात करते हुए, इकोलॉजी के प्रोसेस की बात करते हुए एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं व्यंग्यात्मक रूप से। तो ये घायल बसंत है, छोटा सा व्यंग है। तो मैं घायल बसंत को मैं पढ़ना चाहूंगी कि किस तरीके से इसमें बातें की गई है। मौसम की मेहरबानी पर भरोसा करेंगे तो शीत से निपटते निपटते लू तंग करने लगेगी। मौसम के इंतजार से कुछ नहीं होगा, बसंत अपने आप नहीं आता, उसे लाया जाता है। सहज आने वाला तो पतझड़ होता है, बसंत नहीं। अपने आप तो पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते तो वृक्ष का प्राण रस पीकर पैदा होते हैं। बसंत यूं नहीं आता। शीत और गर्मी के बीच से जो जितना बसंत निकाल सके निकाल ले। दो पाटों के बीच में फंसा है देश का बसंत, पाट और आगे खिसक रहे हैं। बसंत को बचाना है तो जोर लगाकर इन दोनों पाटों को पीछे से ढकेलो, इधर शीत उधर गर्मी को, तब बीच में से निकलेगा हमारा घायल बसंत। तो ये व्यंग मुझे काफी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो काम कर रही हूँ वो इकोलॉजिकल प्रोसेस जो है और नेचुरल प्रोसेस से ही हम अपने साइकोलॉजी को ट्रेस कर पाते हैं और सामने अपने काम को रख पाते हैं। तो ये व्यंग जब मुझे लगता है, जब परसाई इस व्यंग में किस तरीके से परसाई इकोलॉजी की बातें करते हुए एक सोशल पॉलिटिक्स को सामने रखा है। मुझे लगता है कि अगर उस समय अपने कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में परसाई व्यंग के थ्रू अपनी ये बातें लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यंग के थ्रू उन्होंने अपने आप को भी रखा है।
तो हाँ, तो फिर इसी के अराउंड मैं अपने काम को आगे बढ़ा रही हूँ। ये जो वर्क है वाटर कलर ऑन पेपर, उसी से निकला है कोकून जो मैं बना रही हूँ। तो ये भी उसी से रिलेटेड वर्क है कि कोकून में एक सिल्क वॉर्म के प्रोसेस है कि वो किस तरीके से कोकून बनाता है, और फिर वो कोकून कहाँ कहाँ एक घूमता है और उसकी वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और कहाँ पर नहीं करती है, गायब होना और बनना। तो तो मेरे काम की टाइटल है शहतूत के पत्ते। तो मैं इस पोयम को पहले रीड करना चाहूंगी कि मतलब कोकून के थ्रू हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये पोयम है शहतूत के पत्ते। अभी भी शुरुआती बसंत में एक समय है शहतूत के पेड़ों को रेशम के कीड़े से दफनाने के लिए। उनके जीवन का वह पहला समय, तब वह हरे पीले रंग को चुनती है। वह उसे नई रची सभा कहती है। रेशम के कीड़े शहतूत के युवा पत्तियों को काटते हैं। फर्श पर उनकी छाती पारदर्शी हो जाती है, सील और अंदर से भर जाता है। सदियों हमारे स्वाद में भारी बदलाव के बावजूद हमारे पूर्वज रेशम के कीड़े बन गए हैं। युवा शहतूत के पत्ते को गोली मारता है। सब बिना मुंह भी उभर रहा है। गेंदें खुली और पूरी तरह से अक्लमंद। अंगूठा कोई भी बना सकता है जो हमारा वजन करता है। कभी सबसे सुंदर नहीं सुना, एक ही जगह एक ही जानवर का सामना, जैसे कोई घर के भीतर का शरीर। सॉरी, मैं अच्छे से पोयम नहीं पढ़ पाती। तो ये मैं पोयम लिखी हूँ कहीं नहीं, वो सिल्क वॉर्म के प्रोसेस से। तो किस तरीके से शहतूत का पत्ता इसमें टाइटल है, किस तरीके से सिल्क वॉर्म जो रेशम के कीड़े हैं वो शहतूत के पत्ते को लगातार छेद करती है और छेद करके अपने भोजन का स्रोत बनाती है। वो एक समय ऐसा आता है कि कुछ महीने तक सिर्फ और सिर्फ वो पत्तियों को छेद करते हुए खाना खाती है, और एक समय सिल्क वॉर्म का ऐसा आता है कि वो पत्तियां खाना बंद कर देती है और वो सिर्फ कोकून बनाने का काम करती है अपने सराउंडिंग, जिसमें वो रह सके, जिसमें अपना वो आगे का प्रोसेस कर सके। तो वो समय सिर्फ और सिर्फ उसके कोकून बनाने का होता है, खाने का नहीं। फिर किस तरीके से वो कोकून को उबलते हुए पानी में उबलना पड़ता है और कीड़े को मरना पड़ता है, और किस तरीके से उससे रेशम की चमकीली धागा प्राप्त होते हैं, और किस तरीके से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और जिसमें एक लेबर प्रोसेस होता है, रोजमर्रा की लाइफ होती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैं अब साइकोलॉजिकली अपने इस प्रोसेस को देख रही हूँ, और कहाँ पे जो चीज़ें बहुत वैल्यूबल होता है किस तरीके से वो वैल्यू हट जाती है, फिर दूसरा वैल्यू में आ जाता है, और वो वैल्यू लुप्त होकर तीसरा वैल्यू में आ जाता है। तो ये वैल्यू होना और ना होना अपने आप में एक सटायर का काम करता है मेरे लिए। तो इसमें हम ये देखते हैं कि और ये सारी जो प्रोसेस होती हैं ये कहीं ना कहीं इमोशनली और मेंटली मेरे लिए बहुत भारीपन होता है, इसमें मेरे लिए बहुत भारी है, जो कि ह्यूमन साइकी को समझने में मुझे काफ़ी मदद करता है। तो आगे का काम में ये मैंने उत्साह फाउंडेशन में बनाया था, जो कि वो एक कोकून का ही प्रोसेस है, उससे ही रिलेटेड ये काम एक अलग मीडियम में आगे निकल के आया, जो कि इसकी स्केल काफ़ी बड़ी है। ये मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ गोलघर से। ये जो गोलघर है ये मैंने इंटरनेट से लिया है, ये मेरी ड्राइंग नहीं है। तो मैं थोड़ा सा गोलघर के बारे में ये बताना चाहूँगी कि गोलघर पटना में है, एक इमारत है जो कि ब्रिटिश शासन में बना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था 1784 ईस्वी में। और ये इसीलिए बना था ताकि जब वहाँ पर अकाली और भुखमरी आई थी, ताकि ब्रिटिश सैनिकों के लिए ये गोलघर में जो के अंदर जो अनाज भरा जाता है वो उसके काम में आए। ये जनरली एक ग्रैन की तरह इसमें अनाज संग्रहण बने, इसीलिए ये गोलघर को बनाया गया था। तो फिर इसमें
काफी ये बड़ा है। इसमें एक सर्कल, एक मधुमक्खी के आकार का मैं इसे देखती हूँ, जो एक मधुमक्खी के आकार का दिखता है बड़ा सा, जिसमें सीढ़ीनुमा गोल सर्कल है। और फिर किस तरीके से अंदर एक डायमीटर के जैसा एक छेद है, जिसमें मजदूर सीढ़ी के जरिए ऊपर जाते थे और अनाज नीचे की ओर फेंकते थे और वो गोल घर भरता जाता था। इसमें एक छोटा सा गेट भी है जो आगे की ओर दिख रहा है, पर ये गेट का जो आर्किटेक्चर है वो दोष की तरह निकला। दोष बोले तो उसमें इंजीनियरिंग जो है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया। वो गेट बाहर की ओर नहीं खुलता था, अंदर की ओर खुलता था। तो ऐसा हम पढ़ते हैं या कहा जाता है कि ये इसके अंदर इतने अनाज भर गए कि वो गेट अंदर की ओर खुल नहीं पाया और फिर वो सारे अनाज सड़ गए और फिर वो कहीं ना कहीं ये गोलघर दोस्त की तरह देखा जाने लगा। तो इसे मैं अपने कोकून वर्क से काफी कनेक्ट कर पाती हूँ, जो एक तरीके का यूजलेस है। यूजलेस है जो हमेशा मेरे काम में है, एक वैल्यू की जो बात करता है, जो हमेशा मेरे काम में मैं हमेशा बोलती हूँ कि किस तरीके से एक वैल्यूबल चीज की वैल्यू नहीं होती, कभी कभी वो बहुत वैल्यूबल सोच से बनाया जाता है। तो कहाँ पे तो इसमें ये है कि जहाँ पर कोकून एक स्पेस है जो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट देता है, और एट द सेम टाइम वो कैसे डिस्कम्फर्ट जोन बन जाता है। होम जहाँ पर हम कंफर्ट स्पेस की तरह देखते हैं। तो वही है कि मेरा काम एक मतलब हम अपने काम को एक पॉइंट पे मतलब मैं नहीं बात कर रही, इसमें काफ़ी लेयर्स है कि इसमें ये नहीं कि हम लेबर को क्रिटिक कर रहे हैं या फिर सिल्क सिल्क के बारे में हम बता रहे हैं कि सिल्क यूज़ नहीं करना चाहिए, ना कि कोकून के पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें कि जो पूरा एक लेयर्ड है और जो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल जोन की तरफ ले जाता है। और हाँ, जिसमें कि एक इकोलॉजिकल प्रोसेस से हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी होता है और कभी कभी वो फायदेमंद नहीं होता है, वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट जोन की तरफ भी ले जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये कोकून का जो पॉलिटिक्स है, ये जो लेयर है, उसमें मेरा जो थॉट है वो कहीं ना कहीं एक पर्सनल एरिया को और साइकोलॉजिकल पर्सनल एरिया और साइकोलॉजिकल उसमें साइकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी है, साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स है नहीं सॉरी, उसमें एक मतलब उसके साइकोलॉजी मेरी एक साइकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी और साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है एक पर्सनल एरिया को, एक साइकोलॉजिकल डिस्कोर्स को समझने का कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसी से रिलेटेड ये मैंने डिफरेंस लिया था कोकून, और ये उत्साह का ही काम है जिसमें कि फंगस लग गया था। वो धीरे धीरे उसमें काफ़ी सारे फंगस लगना स्टार्ट हो गए उसके साथ गीलेपन से। तो किस तरीके से उसका एक उसका जो एक वैल्यू है और उसका जो एक फॉर्म है वो किस तरीके से उसमें एक अलग चेंजेस आ रहा था। तो इसके बारे में मैं मतलब उसी से रिलेटेड ये पोएम मैंने लिखा था। जो पोएम है मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। आपको दिख रहा है ये अच्छे से? हाँ दिख रहा है। ओके। कुछ भी तो नहीं या कुछ भी, कीमत बढ़ रहा है वो हाथ में है। हाँ लेकिन हाथ बहुत लंबा होना चाहिए। मुझे लगता है ये उन लोगों से गुजरता है जो सारी उम्मीद खो चुके हैं। कमजोरी एक महान चीज है, अन्य बेवकूफ बातें भूखमरी मार देती है। और आप यहाँ चांद से गिर गए, इसका स्वाद किस तरह का है? एक तरह का सल्फर। वे पानी में इसलिए हैं क्योंकि वो हमेशा जीना चाहते हैं। सूरज काला बोरी की तरह काला हो गया और चांद हर तरह से लाल। और ये जो काम है ये काम मेरा वन शांति रोड में मैंने बनाया था बेंगलोर में।
2018 सितंबर। और इसी काम से कहीं न कहीं अभी जो मैं कोकून के अराउंड काम कर रही हूँ उसका एक्सटेंशन है। जो भी मेरा काम अभी हो रहा है इसी का एक्सटेंशन है। तो ये काम मैं जनरली कॉटन के ऊपर था, जो कि सुरेश जयराम सर हम लोगों को लालबाग वहाँ पर ले गए थे। काफ़ी सारे वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन थे, बहुत सारे मतलब काफ़ी सारे ट्रीज थे डिफरेंट डिफरेंट। तो वहाँ पर एक कॉटन का ट्री था। वो एक ऐसी ट्री था वो कॉटन की एक ऐसा पेड़ है जिसका रुई काम नहीं आता था। वो पेड़ से नीचे गिर रहा था और वो सब जगह फैल रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा-सा और पढ़ना चाहा। तो एक फार्मिंग कॉटन अलग होती है, जिसे फार्मिंग के थ्रू किया जाता है, जो प्लांट में होता है। तो और एक है जो कि सिल्क, जो एक अलग धागा जो वॉर्म से होता है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। तो मैंने वहाँ पे जो भी कॉटन फैले हुए थे गार्डन में, मैंने उसे कलेक्ट किया काफ़ी सारा, 1-2 कार्टन। देन जो मार्केट कॉटन है जो जनरली मैट्रेस में यूज़ होता है, उसे उसे कुछ खरीदा। और प्लस मेडिकल कॉटन जो बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है उसी से रिलेटेड मेरा कुछ काम था। तो उसमें ये था कि जो फार्मिंग कॉटन की प्रोसेस है, उसका जो फार्मिंग कॉटन का लुक है कि किस तरीके से वो फूल खिलता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसका रंग में चेंजिंग होती है हरे नीले फिर वो बाद में लाल और मृत, और किस तरीके से वो नेचुरल प्रोसेस में किस तरीके से वो एक फिर ब्लैक कलर के कवर में अंदर एक कॉटन होता है, फिर वो फूटता है, फिर वो कटोरा बढ़ता है। तो ये जो प्रोसेस था, नेचुरल प्रोसेस, ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और इसे मैं बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल मैं जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं और तो इसे ट्रेस करने में काफ़ी मदद कर रहा था, जो कहीं न कहीं मेरे पर्सनल साइकी से भी आता है। ऐसा नहीं कि हम जो काम कर रहे होते हैं, बाहर चीज़ों को ले रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं बाहर की चीज़ों को दिखाता है। हमेशा कोई भी काम अगर हम कर रहे होते हैं, वो इंडिविजुअल से ही निकलता है। अगर वो नेचर में जाता है, तो वो शायद बहुत ही लार्ज स्केल में हो जाता है। तो ये काम जनरली वहीं से था। तो जिसमें कि मैंने कुछ ड्राइंग्स भी बनाया था। कॉटन जिसे मैं स्किन की तरह देखती हूँ कि जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि सब कुछ बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अगर कोई मर भी गया तो स्किन गल के उसमें कुछ और बैक्टीरिया पनप रहा है, कुछ और बन रहा है। सॉल्ट अगर गल रहा है तो फिर वो पानी हो रहा है, तो मतलब वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। तो सब कुछ में कुछ ना कुछ बन रहा है, कोई भी चीज गायब नहीं हो रहा है। पर हाँ, गायब तब हो रहा है जब वो अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर रहा है। तो गायब होना और बनना, ये दो चीजें मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग मैं देख पा रही थी। ये जो नेचुरल प्रोसेस था, जो कि मुझे काफी हेल्प दे रहा था मेरे काम को समझने में। तो ये उसी से रिलेटेड ड्राइंग है जो मैंने किया था वहाँ पर कॉटन प्रोसेस से। तो ये वहाँ पर मैंने जो फार्मिंग प्रोसेस बताया है, उसी से रिलेटेड मैंने ये पोएम लिखा था। ये पोएम है, हाँ, ये पोएम था फार्मिंग कॉटन का जो प्रोसेस है, मैंने उससे लिया था। उसके प्रोसेस को देखकर ये पोएम मैंने लिखा था। फूल फूलना शुरू कर देंगे, पहले सफेद या फिर पीला, अगले दिन रंग लाल हो जाएगा, फिर यह छोड़ने से गिर जाएगा अपने स्थान। किसानों में एक छोड़ने छोटे कटोरी के पीछे अक्सर इस घटना को सफेद के रूप में देखेंगे। अगले कुछ हफ्तों में लाल और मृत, अंत में ये कटोरा बढ़ेगा। पौधे की पत्तियों सूखी के रूप में सूर्य में सूखा, पत्ते पर एक कपास किसान, सफेद के समुद्र से घिरा हुआ। घटना घटनाएं घटकर विलीन हो जाती है और दूसरी ओर प्रारंभ। इसमें घटना की प्रधानता है, ना ही कोई केंद्र बिंदु का चित्रण है और ना ही कोई कहानी। तो ये पोएम कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है।
जो मैंने ये काम वन शांति रोड में किया था। तो आई थिंक मैं इस पोएम को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस समाज में जी रहे होते हैं मैंने जो बोला था, हमारी जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है, एक क्यूरियोसिटी है, वो इकोलॉजिस्ट की बातों के थ्रू ही निकल के आती है। तो ये काम मैंने आफ्टर MFA SMU में किया था 2018, नहीं, नीव आर्ट गैलरी में किया था 2018। तो इस काम के बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहती, क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। जैसे कि अगर हम इस काम को भी देखें तो काफ़ी कुछ इसमें चल रहा है। ये कुत्ता है या सुअर है या फिर कोई अलग तरीके का जानवर है, ये क्या है जो इस तरीके से पड़ा हुआ है, जिसका कोई मतलब परफेक्ट फॉर्म नहीं है, जिसमें कोई मास्टरी नहीं है। तो अगर हम इस काम को देखें तो मुझे एक आगे की पोएम याद दिलाती है, जो छोटा सा एक व्यंग्यात्मक पोएम था कि जो फूल बनाएंगे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे, जय होंगे राम, मारे जाएंगे रावण, सेनाएं हो जाएंगी पार, और जो निर्माता रहे बाद में बंदर कहलाएंगे। तो एट द सेम टाइम ये सारी मैं उन्हें भी पढ़ रही थी, और ये मैं बना भी रही थी। एट द सेम टाइम ये पोएम भी मैं लिख रही थी, जो शब्द पे मैंने लिखा है। तो सारे कुछ एक साथ पार्लर चल रहे थे। अगर मैं उस काम को अगर एक्सप्लेन करूँ तो शायद इसकी जो असीमितता है वो शायद सीमित हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं कर पाऊँगी। हाँ, पर मैं ये पोएम एक्चुअली ये जो मैं अभी काम दिखा रही हूँ वो जनरली स्कल्पचर और पोएम की ही अराउंड है। तो पोएम्स ज़्यादा मिलेंगे। तो फिर ये पोएम है एक, जो मैंने शब्द पे लिखा है कि हम क्या फील कर पाते हैं अगर आवाज़ निकलती है, और नहीं भी है तो फिर क्या होता है। तो ये शब्द पे पोएम है। ये जो शब्द बने हैं ऐसे बने हैं जैसे आज घर से काम पर जाएं और वापस आ जाएं। जगह मायने बदल गए, सवाल नए कैसे आए, तरीका नए कहाँ फिर शुरू करें। आवाज नहीं तो वो बोले, अगर वो बोले तो क्या हम सुने। बोला और हो गया, एक शब्द कहा और बदल गया। सवाल पूछती है सड़क का गंध, वहां नहीं हूँ फिर भी हूँ सोच के जरिए। तो हाँ, इस पोएम को मैं, तो यही है कहीं ना कहीं। और ये काम मैंने इटालियन एम्बेसी में किया था, गुड़ की चाय इसका टाइटल है। और इसके जस्ट एक सेकेंड, इसके जस्ट अपोजिट एक वीडियो भी चल रहा था। तो ये गुड़ की चाय जो टाइटल है इसका, ये छोटा सा व्यंग है हरिशंकर परसाई का, जिसमें कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था हरिशंकर परसाई के व्यंग में, जिसमें हरिशंकर परसाई बोल रहे होते हैं कि हरिशंकर परसाई ने उसमें लिखा है कि गुड़ की चाय पीना कितना डिफिकल्ट है। गुड़ की चाय पीने से ऐसा लगता है मानो कि शहीद हो रहे हैं। तो उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये काम जो इटालियन एम्बेसी में था, ये शील्ड आर्ट इनिशिएटिव के ही थ्रू था। ये काम ग्रुप एग्जीबिशन था। तो उसमें ये है कि गुड़ की चाय पीना जैसे कि हम शहीद हो रहे हैं, किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए मरते हैं, और एक मध्यम वर्गीय इंसान चीनी की चाय नहीं पीकर उसे गुड़ की चाय पीना पड़ता है। तो उनका ये व्यंग था कि गुड़ की चाय पीना जैसे मेरे लिए भगत सिंह की कुर्बानी से भी बढ़कर है। उनको भगत सिंह की कुर्बानी भी कुछ नहीं लग रही थी, और वो ये कह रहे थे कि किस तरीके से मतलब अगर हमारा देश 1920 से 1930 तक सिर्फ गुड़ की चाय पीता तो हमारा देश 1931 में ही आज़ाद हो जाता। तो ये काफ़ी एक अलग तरह की शब्दावली है जो जिसे रखा गया है, और इसे समझने के लिए एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग भी मुझे लगता है जरूरी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि किस तरीके से पॉलिटिकल सटायर के थ्रू
उन्होंने अपनी बातें रखा है उस समय की सिचुएशन को, जो अगर हम व्यंग को देखें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही न्यूट्रल है। आई मीन उसे आप ले भी सकते हैं, नहीं भी, एक हाइड एंड सीक के जैसा होता है। तो ये काम उसी से रिलेटेड था। तो इसमें भी मैंने एक पोयम को रखा है जिसमें था, एक इत्र की तरह देखें, गंध मुश्किल नहीं है, पर सोच यह है कि यह मुश्किल है। एक नया आकार, तो यह एक अलग तरह की तस्वीर है, ना साधारण, ना संचार की जाने वाली। तो यह अब एक राजनीतिक तस्वीर है। अब सवाल उठता है, यह मामला क्यों है? यह हमारे अंदर है या फिर इतना अमूर्त कि हम इसकी व्याख्या कर ही नहीं सकते। तो वही है कि अगर हम दो शब्द बोलें, गंध मुश्किल है, तो या तो इंसान गंध को लेंगे, नहीं तो मुश्किल को लेंगे। वो कभी भी एक साथ दोनों को नहीं सोच पाएंगे। तो यहाँ पर ये होता है कि तो तब यहाँ पर एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है जो राजनीतिक बन जाता है। तो इस पोएम के जरिए यही इसमें कहा गया है। तो अब नेक्स्ट है, ये काम मैंने SMU के फाइनल डिस्प्ले में किया था। मैंने 6 पंपकिन अलग अलग शेप में बनाया था, जिसके अलग अलग फॉर्म थे। और ये कद्दू को वही मैं वैल्यू की तरह देखती हूँ। इसका वही है कि ये रेणु से लिया गया था। रेणु फणीश्वर नाथ रेणु, जो एक अच्छे हिंदी राइटर हैं, ऑथर हैं, और उनका मैला आंचल है, जिसमें कि कहीं भी एक सेंट्रल पॉइंट नहीं है। वहाँ पे कहीं भी बीच में धुन ताल एक गाना आ जाता है, और वो उसमें ना कुछ ना करते हुए भी उन्होंने काफी कुछ उसमें कहा है, जिसमें कि उस बुक पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। और उस बुक में ये छोटी सी चीज है कि किस तरीके से वहाँ पर ये है कि एक इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय में वहाँ पर एक छोटे से गांव जिसका नाम मिर्जापुर है, लोग गोला बनाकर बैठे हैं, कुछ विलेज पीपल, और बीच में रेडियो चल रहा है। और वो अपने एक एक्सेंट में बात करते हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान अलग हो जाएगा, जिसमें कि पाकिस्तान आधे लोग चले जाएंगे, कांग्रेस आ जाएगा। तो फिर एक इंसान बोलता है कि पाकिस्तान क्या कोई कद्दू हो रहा है जो कट के अलग होगा? तो किस तरीके से मतलब बहुत ही मजाकिया और हल्के में बात कर कर कितनी भारी भरकम थॉट रखी गई है। कद्दू जो जिसे बहुत लोग लाइक करते हैं, जिसे नहीं भी कर जो जिसको लाइक नहीं भी करते हैं, जो एक अलग तरीके की पॉलिटिकल सटायर भी जिसे देखा जाता है, जिसमें काफी सारे फ्रेजेस बने हुए हैं, जैसे कि पड़ा हुआ है जिसका कोई वैल्यू नहीं है पर वो दिखेगा जरूर। तो इस तरीके की चीजें मैं इसमें देख पाती हूँ, जो हिल नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन में एक इडियोटिक ह्यूमर को, इडियोटिक पावर को मैं इसे देख पाती हूँ कि वो किस तरीके से दिखता है। और कद्दू कहीं ना कहीं मेरे लिए वही है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो मैं कद्दू के बारे में बोल रही हूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मजाकिया बातें कही गई है, कहीं ना कहीं इसमें सीरियसनेस भी है। और वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल साइकी से भी निकलता है, जहाँ पर हम कभी कुछ ऐसा जो ऐसी घटना है जिसमें हम एक अनकम्फर्ट फील करते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि हम शायद है भी कि नहीं है। तो उस चीज को मतलब किस तरीके से एक चीजें हैं जिसमें वैल्यू नहीं होती, एक सीरियसनेस नहीं होता, पर एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं वैल्यूबल है क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, वो हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से मैं इस काम को रेफर करना चाह रही थी। और इस तरीके से मैंने ड्राइंग बनाया है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है, जस्ट इंटरप्टिंग। ये कॉल 3 मिनट्स में शायद डिस्कनेक्ट हो जाए, तो एवरीवन प्लीज रीजॉइन विद द सेम लिंक। यू कैन रीजॉइन इमीडिएटली। थैंक ओके। प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। ओके, मेरा वैसे एंड ही होने वाला है।
तो इस तरीके से ये डिस्प्ले था कद्दू, और ये मेकिंग था जिसमें कि काफ़ी वेट थे, जो कि बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर हर 2 कदम पे कद्दू को नीचे रखकर फिर उठाया जा रहा था, फिर उसे आगे की ओर बढ़ाया जा रहा था, फिर नीचे रखकर उठाया जा रहा था। तो किस तरीके से मतलब इसकी वेट स्केल, इस तरीके की जो हम बातें कहना चाह रहे हैं, और बस, और वो कहीं न कहीं ये मैला आंचल से ही निकला हुआ है, जो मैंने फणीश्वरनाथ रेणु की बातें कही, क्योंकि जो मैंने उसे इसीलिए लिया, शायद ये भी हो सकता है कि मैंने वी बिलोंग सेम प्लेस, या ये भी हो सकता है कि मेरे साथ जो हुआ है, जो मैं सोच रही हूँ, वो कहीं न कहीं मैं शब्दों के थ्रू कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो ये मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो जिस तरह से मैं इन्हें देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं कि सभी उसी नज़रिए से इन्हें देख पा रहे हैं। तो किस तरीके से मैंने उसे लिया है और अलग-अलग मीडियम के थ्रू उन्हें वो काम निकल के आया है, जो शब्दों में कहा गया है, कहीं न कहीं वो शब्द डिस्ट्रॉय होकर अब कुछ शायद और बातें कह रही हो, और वो बहुत ही आगे मतलब भी जा सकता है उनके शब्द। तो यही कहने का मतलब है, जिस तरीके से मैंने उसे अडॉप्ट किया है, ये ज़रूरी नहीं कि वो शब्द सभी लोग उसी तरीके से उन्हें अडॉप्ट कर पाएँ। वो एक जैसे दिखेंगे ज़रूर, पर आइडेंटिकली ट्विन्स वो नहीं होंगे। तो एक किस तरीके से मतलब वो फणीश्वरनाथ रेणु की मैला आंचल इस काम में मैंने लिया है, बस। तो ऑडियंस के लिए बस ये एक कहना था कि मुस्कान और मैं हमने डिसाइड किया था बस स्कल्पचर और पोइट्री लाने के लिए, जबकि मुस्कान का बहुत सारे काम ड्राइंग और पेंटिंग में है। और दूसरा जो पॉइंट है वो कॉन्वर्सेशंस के बारे में है कि हम कोशिश करेंगे कि कॉन्वर्सेशन करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर किया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना ज़्यादा आसान मुझे लगता है और एक फॉर्मल तरीके से कॉन्वर्सेशन करना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, जब भी आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन है, आप इमीडिएटली टाइप करके पूछ सकते हैं या अपनी अनम्यूट करके माइक या पूछ सकते हैं। मेरा जो पहला सवाल या ये है वो मुस्कान कहाँ है जॉइन? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। ओके, तो मुस्कान तुम्हारा बहुत सारे मीडियम में काम है, ड्राइंग, स्कल्पचर, पोएट्री, और इतना बड़ा स्केल में करते हो। स्कल्पचर के वो इंस्टॉलेशन टाइप भी कभी कभी हो जाता है। बहुत सारे मटेरियल उसमें तुम यूज करते हो। तुम्हारा बहुत सारा रेफरेंस है हिंदी लिटरेचर से, जिसको हम मतलब फोक या आंचलिक साहित्य बोलते हैं, वहां से तुम्हारा काफी रेफरेंस या इन्फ्लुएंस तुम लाते हो। मैं क्यूरियस हूँ कि तुम्हारा क्रिएटिव प्रोसेस कैसे शुरू होता है? कहाँ से तुम मतलब आइडिया से शुरू करते हो या मटेरियल से शुरू करते हो या कहाँ से शुरू करते हो? वो क्रिएटिव प्रोसेस कैसे शुरू होता है? मेरा जैसे जब मेरा जनरली काम कहीं न कहीं एक पर्सन से ही आता है। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं और पार्लर जो सोसाइटी में चल रहा होता है, तो वो जो एक कन्वर्सेशन बनता है, तो वो कन्वर्सेशन कुछ भी हो सकता है। वो चाहे शब्दों के थ्रू हो सकता है या फिर ड्राइंग के थ्रू हो सकता है, उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, पर जो सोच रहे होते हैं उसका लैंग्वेज कोई भी मीडियम में हो सकता है। तो फिर जनरली मैं अपना काम का ऐसा कोई मीडियम स्टार्ट नहीं होता। वो जनरली कभी-कभी ऐसा होता है कि शब्दों के थ्रू वो स्कल्पचर या पोएम में आता है, या पोएम और स्कल्पचर के थ्रू वो शब्दों में चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं कहूँगी, प्रियंका बोल रही हूँ मैं। मेरा वीडियो किसी तरह ऑन नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आपने बोला भी कि बीच में हो सकता है फणीश्वरनाथ रेणु कहीं से हम एक जगह से आते हों, इस वजह से भी कनेक्टिविटी कुछ होती है। तो मुझे यहाँ पे लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं हम किसी एक केंद्र बिंदु पे जुड़ते तो जरूर हैं। जैसे आप साहित्य से जुड़ती हैं, तो साहित्य से जैसे ही आप जुड़ती हैं तो वो अपने आप उनकी कविताएं, रचनाएं, जितनी भी चीजें हैं वो आपसे कनेक्ट हो जाती हैं। तो
ये बड़ी एक अच्छी बात है आपके साथ कि नेचर की तरफ से तो आपको मिल ही रहा है कुछ ना कुछ, साथ ही साथ कुछ साहित्यिक चीज जैसे ही आप पढ़ती हैं उससे भी कुछ ना कुछ आपको क्रिएशन मिलता है। तो मुझे यहाँ पे बस यही चीज एक लग रही है कि जैसे ही आप साहित्य के साथ जुड़ी हैं वैसे ही ऐसा हुआ है कि कविताएं भी आ रही हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपके नेचर और काम में परिवर्तन आ रहा है। आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप हमारे कविता को भी देखेंगे तो वो काफ़ी ब्रोकन लैंग्वेज होता है। जनरली मैं अपने कविता को अब मैं समझने लगी, वरना मैं उसे भी एक आर्ट की तरह ही देखती थी कि किस तरीके से ड्राइंग, किस तरीके से हम टेक्स्ट को ड्राइंग फॉर्म में देखते हैं, और ड्राइंग अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है टेक्स्ट और वर्ड का। तो जिस तरीके से मतलब अगर मैं जो भी पोएम लिखती थी, तो जिस तरीके से हमारे स्कल्पचर में एक डिस्ट्रॉय फॉर्म, उसमें वो एक अलग तरीके का रॉ में होता था, वैसे ही हमारे शब्द भी होते थे काफ़ी ब्रोकन। तो जनरली वो एक कहीं ना कहीं हमारे आर्ट प्रोसेस से ही आता था वो। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कि सॉरी, क्वेश्चन क्या था? कि क्वेश्चन नहीं था मेरा जैसे वैसे, आपने बस बोला ये मैं एक कि कन्वर्सेशन रख रही थी आपके सामने कि साहित्य के साथ जब आप जुड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस करेगा ना आपको, आपके व्यक्तित्व को, कि वो आपकी पूरी कविता में भी मुझे दिख रही है चीजें, और नेचर से भी, प्रकृति से जुड़ रही हैं चीजें। तो वो ही मैं एक सिर्फ करना चाह रही हूँ कि एक केंद्र बिंदु पे आके हम कहीं ना कहीं मिलते हैं। साहित्य क्यों, कलाकार साहित्यकारों से भी कनेक्टिविटी रखते हैं, हर एक फील्ड से हम क्यों रखते हैं। तो आपके जो काम में मुझे दिख रहा है वो साहित्यिक झलक थोड़ी आज मुझे जो है वो ज्यादा दिखी है। तो आप भी इसको करती हैं वो कि हाँ, साहित्य का काफी असर है आपके काम में, आपने जो पढ़ा है, जो स्टडी करती हैं वो है आपके काम में, वो आप भी इससे करती हैं कॉन्फ्रेंस कि हाँ है ऐसा? हाँ, ऐसा है कहीं ना कहीं मैंने बहुत अच्छी बात है। हाँ। चीज़ों को पढ़ना और स्टार्ट किया तो वो इन्फ्लुएंस आते गया। और यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि हमने स्पेसिफिकली स्कल्पचर पोएम्स सिलेक्ट किया है जो डायरेक्ट रेफरेंस से भी आते हैं ज़्यादा, तो इसलिए भी वो ज़्यादा दिखता है। सेकंड, ये सवाल मैं ऐसे सोच रहा था तुम्हारे फॉर्म और कंटेंट के बारे में। तुम्हारे जो भी तुमने काम दिखाया, पर्टिकुलरली स्कल्पचर वर्क या ड्राइंग्स में, एक सर्कुलर फॉर्म बहुत एविडेंट है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड होके आता है, और वो सर्कुलर फॉर्म कभी एक कॉस्मिक एग की तरह लगता है, जो जैसे कोई भी अंडा, जैसे अंडे को हम मतलब बिगिनिंग सोचते हैं, जैसे लिंग होता है, उस तरीके से दिखता है। और कभी कभी वो कुकून बन जाता है, कुकून जैसे किसी का घर बनता है, वो एक शेल्टर की टाइप हो जाता है। और वही फॉर्म तुम्हारे पेंटिंग या ड्राइंग में, जो तुमने इनिशियल ड्राइंग दिखाया था, उसमें वो कहीं पे ट्रांसपेरेंट हो जाता है फॉर्म, कहीं पे हेजी या ब्लरी हो जाती है, बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है। लेकिन वही फॉर्म जब स्कल्पचुरली आता है तो एक सॉलिड फॉर्म में आता है, बहुत रिजिड, और जैसे जैसे तुम्हें बनाया जाता है तो वो सॉलिड लगता है स्कल्पचर। और मुझे लगता है शायद वो अपनी मीडियम्स की अपना अपना देन है, या अपनी पॉसिबिलिटी या लिमिटेशंस है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो फॉर्म को लेके, वो पहला ग्लांस में, पहला लुक में तो वो लगता है कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है बेसिकली। जैसे मैं देख रहा हूँ, मुझे वो कंटेनर टाइप दिखता है, जैसे मतलब हम एक मतलब ऐसे एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को तुम दूसरे तरीके से देखोगे तो उसमें एक कंटेनर की तरह ये होता है कि उसके अंदर कुछ है। तो जैसे मैंने पहला जो आपके जो पिग के पीसेस थे, या नहीं पिग के नहीं, जो पंपकिन का सीताफल, जो मैंने देखा आप SNU में मेरे फाइनल डिस्प्ले में, तो जिससे लग रहा था कि ये सब उसके अंदर कुछ समाया है, और ये एक बलून की तरह है जिसमें हवा नहीं है, उसमें पानी भरा हुआ है। बलून अब उड़ेगा नहीं, बल्कि वो फैलेगा। और वो पंपकिन हो, वो पिग हो, वो पिग भी मुझे कहीं पे लगता है कि वो मुर्दा नहीं है, कि वो अभी सड़ के गल के ये होगा, वो लगता है कि उसके अंदर कुछ भरा हुआ है जो फैलेगा। तो ये सारा ऑब्जेक्ट मुझे कंटेनर के टाइप
ये लगता है। और ये जो घपला है कंटेंट का, वो जो कंटेनर के बारे में हम बात करते हैं, कोई भी पात्र, जिसको पात्र बोलते हैं, मतलब पता नहीं हिंदी में ही पात्र बोलते होंगे ना, उड़िया में पात्र बोलते हैं, कंटेनर। हाँ, कंटेनर। और इसमें जो रहता है वो कंटेंट होता है, और वो कंटेंट का घपला जब शुरू हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि कंटेंट क्या है, तो वहां से मुझे लगता है कि सैटायर का शुरू होता है, जो व्यंग जो तुम रिपीटेटिवली करते हो, जो तुम परसाई से लाते हो। या मैं जब अभी तुम्हारे काम के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ मिले हिंदी के राइटर, जैसे राग दरबारी है इनका, श्रीलाल शुक्ल का, और बहुत सारे ऐसे हिंदी में जो व्यंग करते हैं। तो तुम थोड़ा सा वो कंटेंट के बारे में मतलब कुछ कहना चाहोगे, अगर मतलब उस तरीके से कुछ है? कहाँ से वो तुम्हारे लिए, कहाँ से वो सैटायर शुरू होता है? और वो कंटेंट, वो मैं मेटेरियलिस्टिक नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पिक के अंदर क्या भरा हुआ है या सीताफल के अंदर क्या भरा हुआ है, मैं साइकोलॉजिकली पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि उसके अंदर क्या भरा है? हाँ, कि यही है कि अभी ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है मेरे काम के लिए। ये काफ़ी मतलब सटीक है जो आपने अभी बताया। तो वही है, जब भी कोई भी काम हम लेते हैं तो एज इट इज़ लेते हैं, पर वही आर्टिस्ट अगर उसे डीपली थिंकिंग करे तो वो आर्टिस्ट का एक अपना साइकोलॉजिकल ट्रेस होता है कि वो एक्चुअली में है क्या। तो मैं अभी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मतलब लॉकडाउन में मैं एक छोटा सा वीडियो देख रही थी जिसमें कि एक जू था और उसमें काफ़ी सारे एनिमल्स थे और वो एनिमल्स बहुत ज़्यादा फूल गए थे, काफ़ी ज़्यादा मोटे हो गए थे। वो चल भी नहीं पा रहे थे, अगर वो पानी पीने जा रहे थे तो वो लुढ़क के गिर जा रहे थे, अगर वो खाना खाने जा रहे थे तो वो वहां पे ढप हो जा रहे थे। तो वो फनीएस्ट थिंग है। तो अगर हम वहां पे देखें तो कहीं ना कहीं एक सीरियसनेस भी है कि वो ले नहीं पा रहा है, वो चाह नहीं पा रहा है। तो मैं उसको इसी के थ्रू देख पा रही हूँ। Hello, am I audible? Yeah. Yes. Okay, Muskan, hi, this is Gaurav. First of all, this is the first time I'm joining these kind of session after a very long time, and thank you very much, Vikas and Pramita, for such a wonderful initiative. मुस्कान, आपके काम को देख के काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट जो उसके साथ आप साहित्य का जो मिश्रण कह सकते हैं उसको आप करते हैं, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया आपके काम को देख के, कि हम अपनी आम जिंदगी में भी, जैसे आप किताब की बात करते तो मैं कुछ लिखा था कि मैं खुली किताब, मुझे पढ़ने वाला कोई नहीं, अक्सर हम बंद किताबों से बातें किया करते हैं। तो जो कुकून है, मेरे को ये लगता है कि आपके काम में ये दिखाता है, जो मेरे को लगा कि मैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ लेमैन क्या देखता हूँ, कि जीवित आदमी और जीवित व्यक्ति की और जीवन के जाने के बाद जो हम कोई चीज डेड हो जाती है या उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है, हम उसके बारे में बातें करते हैं और उस हार्ड वर्क को भूल जाते हैं कि उसका प्रोसेस क्या था। लाइक सिल्क, तो हम आमतौर पे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सिल्क का कुर्ता पहनते हैं, सिल्क को पसंद करते हैं, या हम उस कॉटन का यूज करते हैं, चाहे वो हम मेडिकल ड्रम में यूज करें, चाहे उसको हम रजाई में यूज करें, और हम उस अल्टीमेट रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, ना कि जो पीछे रह गया है, जो उसके लिए हार्ड वर्क हुआ है, या जो शतूत के पत्तों की भी कुर्बानी कह सकते हैं, या जो कष्ट उस प्रोसेस में रहा गया है, उसको हम भूल जाते हैं बेसिकली। तो मेरे को एक ये दर्शाता है कि हम कभी भी अल्टीमेट जो रिजल्ट है उसको देख के खुश हो जाते हैं, एंड देन वी स्लोली एंड स्टेडली फॉरगेट द पास्ट कि क्या पीछे हुआ होगा। चाहे आपने, जैसे आज आप एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बट आपने एमएफए जब किया होगा तो देयर विल बी अप एंड डाउन, देयर विल बी सब थॉट प्रोसेस। तो हम उस कविता को, लाइक शब्द भी, मुझे ऐसा लगता है कि शब्द एक मरी हुई वो है। शब्द की कोई अपनी वो नहीं है, जब तक हम उसे किसी यूज में करते हैं या किसी इस्तेमाल में लेके आते हैं तो वो जीवन उसको देती है। तो शब्द जीवन दे सकते हैं, लेकिन शब्द अपने आप में अगर देखें तो उसका, जैसे आपने सही कहा कि उसको समझने के लिए हर बंदा अलग अलग लेवल पे समझ सकता है कि बस एक आ रही है जा रही है, तो वो बंदे की समझ के ऊपर है कि उस बस को बोले कि हाँ वो बस आ रही है और बस कहीं जा भी रही है। तो
बेसिकली उस कुकून का जो आपका जो वो लगा, जो मेरे को साहित्य के साथ आपने जोड़ा है वो अच्छा लगा। हाँ, लेकिन मेरे को ये लगा कि हम मेनली अगर आप उस पर थोड़ा सा और उस पर डिटेल में अपने उसमें एक काम में दिखाएं कि इस प्रोसेस के पीछे, लाइक जैसे आपने वो एक 1784 का एक दिखाया, बिहार में एक स्तंभ है जो बहुत कंटेनर के लिए, बेसिकली वो गांव में यूज होता है। अगर आप देखेंगे गांव में उपले जो रखते हैं या गांव में हम जो धान रखते हैं वो बेसिकली जो उसका बना के घर सा और उसके अंदर रखते हैं, गेहूं भी रखते हैं हम कंटेनर में, तो वैसे ही स्टोर होता है वो। तो उसमें अगर आप डाल तो गेहूं रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कीड़े मकोड़े फंगस वो एक अलग पैदा हो रही है, उसका हम जिक्र करते नहीं, वो पैदा ऑटोमेटिकली हो रही है। तो जीवन से जीवन एक जुड़ने वाली कहानी भी है। लेकिन मेनली मुझे लगता है कि हम प्रोसेस जो है जिसके वजह से ये चीज हुई है उसको हम भूल जाते हैं, मतलब वो हार्ड वर्क को हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अल्टीमेटली हम सोचते हैं यार ये पिज्जा आ गया, तो हम वो पिज्जा के अंदर खुश हैं, बट हम ये नहीं देखते कि वो पिज्जा के अंदर वो मैदा जो बना होगा या फसल हुई होगी, उस टाइम बारिश हुई होगी, किसान ने भी मेहनत की होगी, वो किसान को वो भूख से वो मर रहा है या नहीं मिल रहा है उसके बारे में वी डोंट डिस्कस नॉर्मली। सो मुझे ये लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लाइन है आपका जिस पे आप काम कर रहे हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब आप सोच में जाएं तो इस डिबेट को आप घंटों चला सकते हैं कि आप इस उसमें क्या देखते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल वर्क, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन विकास एंड प्रणमिता फॉर सेंडिंग मी द इनवाइट। थैंक यू। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि नया जीवन बनता है अगर कोई भी, मतलब जैसे वो कोठी, हम लोग अपने उसमें कोठा या कोठी बोलते हैं जिसमें कि चावल को रखा जाता है विलेज में, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, या फिर हम पास्ट को भूल जाते हैं। पर यहाँ पर हाँ, वो तो है, भूलना तो है ही, पर मुझे लगता है कि आगे की चीजों को, कोई भी नई चीजें तभी हम ग्रहण कर पाते हैं जब हमारे पास किसी बीते हुए कल की, पास्ट की मेमोरी हो। हाय, सॉरी, मैं कुछ ऐड करना था। मुरारी, हाय, मैं मुरारी बोल रहा हूँ, सॉरी। मेरे को अभी गौरव जी जो ऑब्जर्वेशन अपना एक्सप्लेन किए थे और साथ ही परिवर्तन का जो जो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन जैसा भी था, तो मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा सा जहां तक मुस्कान की प्रैक्टिस को समझ पा रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि जहाँ पे परिवर्तन, एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि कंटेंट का घपला। तो मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ही सही परिभाषा हम एक लैंग्वेज, एक न्यू लैंग्वेज में परिवर्तन जैसे उसको रखा कि कंटेंट का घपला। हमको लग रहा है कि शायद व्यंग का जो फॉर्म है एक्चुअली ये वर्ड इटसेल्फ रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात कि एक्चुअली मुस्कान के काम में मेरे को जो समझ में आ रहा है और इसकी कॉन्वर्सेशन से, और जहाँ तक कि एक्चुअली काम में या फिर इसके कॉन्वर्सेशन में, या फिर जब भी हम पोइट्री को रीड करते हैं तो वहां पे एक केंद्र बिंदु नहीं होता है जहाँ पे वो लेयर्ड हो जाता है। मीन्स अगर कोई भी चीजें हैं तो एक पूरा सर्कल में चलता है, जैसे कि कुकून का होना, देन पत्ते के साथ प्रोसेस करना, फिर उसको एक फैक्ट्री तक जाना, या एक तमाम एक पूरी प्रक्रिया होता है। जैसे अभी गौरव सर, अभी गौरव जी बता रहे थे, तो मेरे को बहुत सही लगा कि कहने का मतलब कोई एक टू दी पॉइंट या सेंटर नहीं है, जो अभी परिवर्तन के वर्ड से भी मैं बोलने की कोशिश कर कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसमें कंटेंट का घपला एक्चुअली है, जहाँ पे ब्रोकन लैंग्वेज बहुत सारे लेयर्स ओवरलैप कर रहे हैं। एक पूरा प्रक्रिया है, वहां पे लेबर भी एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे लाइफ भी एग्जिस्ट कर रहा है, और तमाम चीजें एक के बाद एक खत्म भी हो रहा है। ये एक पूरा प्रक्रिया है, लेकिन कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। और इसको जब एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में रखना और एक नॉर्मल लाइफ से रखना, तो हमको लग रहा है कि वहां पे मुस्कान के काम में एक ह्यूमर और जो जो अप्रोच आता है, जहाँ पे जिसको कि हम शायद हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं, जिसको एक बोलते हैं कि एक खरी लैंग्वेज बोलते हैं अल्हड़पन। मीन्स एक कुछ ऐसे रखना, बट उसकी इम्पोर्टेंस है भी और नहीं भी है। जैसे कि मुस्कान एग्जांपल दे रही थी कद्दू का, अगर सेंटर में है, उसका उतना बड़ा साइज है तो हम नोटिस कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम में वो नथिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है परिवर्तन के सवाल और ऑब्जर्वेशन, और गौरव जी जो लास्ट में बता रहे थे,
तो हमको बहुत इंटरेस्टिंग ये दोनों ही कॉन्वर्सेशन हमको लग रहा है एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है मुस्कान के लिए, और लाइक वो आई मीन लाइक प्रैक्टिस को समझने के लिए कॉम्प्लीमेंट है, और जैसे भी बोले पर बोल रहे बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन है, और एक्चुअली वहां पे कंटेंट का घपला बोले या फिर मल्टी लेयर, तो यही मेरा कहना था। मतलब मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कंटेंट का घपला में ऐसे नहीं, क्योंकि कद्दू हो या पिग हो जो भी मतलब ये हो, वो वहाँ पे एक मेटाफर की तरह आ रहा है। जैसे मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, मैंने कभी लाइफ में पपीता खरीद के नहीं खाया, या क्या बोलते हैं वो अमरूद कभी खरीद के नहीं खाया, तो मुझे हमेशा, या कद्दू भी एक तरीके से, तो मुझे यहाँ पे खरीदना, पपीता खरीदना, कद्दू खरीदना वेस्ट ऑफ मनी लगता है। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ वहां पे कंटेंट का घपला नहीं है, वो एक मेटाफर की तरह है और वैल्यू के बारे में है। तो मैं सोच रहा था मुस्कान बहुत यूज करता है, करती है वैल्यू ये शब्द को बार बार, उसके स्टेटमेंट मैंने जो पढ़ा है और जो भी उसकी एमए का जो मास्टर का डिजिटेशन था वो भी, उसमें भी वो काफी बार वो वैल्यू यूज करता है। वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में मुझे दो चीज आ रहा था कि पहला और वो जो गौरव शर्मा जो सर उन्होंने जो बोला वो भी मुझे लग रहा है कहीं पे वैल्यू के बारे में कह रहे थे, जैसे पिज्जा और पता नहीं देसी कुछ वर्जन होगा तो उसका वो वैल्यू का डिफरेंस होता है, वो कंटेंट का डिफरेंस मुझे नहीं लगता, क्योंकि कंटेंट में वहां पे भी हो सकता है क्या क्या शिमला मिर्च वहां पे भी हो सकता है, शिमला मिर्च यहाँ पे पिज्जा में भी होता है, वो वैल्यू के बारे में मुझे लग रहा है। तो दो चीज आ रहा था, पहला श्रीलाल शुक्ल की श्रीलाल शुक्ल का हाँ राग दरबारी, जो एक बहुत बड़ा सैटारिकल टेक्स्ट माना जाता है, उसकी पहला शुरुआत जब होता है उसमें वो बोलते हैं कि पुलिस को दिख रहा है कि गाड़ी जो ट्रक है वो रास्ते के बीच में खड़ा है, और ड्राइवर को लगता है कि नहीं ये साइड में खड़ा है। तो वो पूरा उस तरीके से चलता है कि कौन किस कॉन्टेक्स्ट में किस पर्सपेक्टिव में देख रहा है और चीजें कहाँ पे है। तो वो मुझे लगता है कि वैल्यू के बारे में, और उसी को कॉन्ट्रास्ट करके दूसरा, जब हम व्यंग के बारे में बात करते हैं, वैल्यू के बारे में बात करते हैं, मुझे रवीश कुमार का याद आ रहा है, एनडीटीवी वाले रवीश कुमार, जिनकी हर एपिसोड अभी सैटारिकल हो चुका है। मतलब जब उन्होंने पहली बार वो डार्क स्क्रीन एपिसोड किया, मुझे लगता है ये सबको आठ में पता चला मतलब पता होगा इंडिया में एटलीस्ट, उस दिन मुझे लगता है वो वीडियो आर्ट को भी चैलेंज कर दिया और वो परफॉर्मेंस को चैलेंज कर दिया, और जितने मीडियम हम विजुअल आर्ट वाले खेलते हैं एब्स्ट्रैक्शन जिसमें होता है, उन्होंने सब ये को चैलेंज कर दिया। और अभी तक मैं जब भी देखता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे जो भी उनका एपिसोड आता है मैं देखता हूँ, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सैटारिकल बन चुका है उनकी भाषा में ये में। लेकिन वो साइमल्टेनियसली जो डेंजर है उस सैटायर का वो है कि मोनोलॉग बन जाती है। रवीश कुमार की जो तुम अभी देश की बात देखो या जो प्राइम टाइम देखो, वो मोनोलॉग होते हैं, उसमें डिबेट्स नहीं होता है, एक आदमी बोलता रहता है। ऑब्वियसली वो क्रिटिक है, सैटायर है, उसमें जर्नलिज्म है, इंफॉर्मेशन ये कर रहे हैं, सैटायर है, वो मोनोलॉग की तरह बन जाता है। और वही रवीश कुमार एक जगह पे उनको ऐसे टॉक में मैं सुन रहा था कि वो बोलते हैं कि सैटायर अभी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने क्वांटिटी में फेक न्यूज आ चुका है, इतना इंफॉर्मेशन की घपला है कि अब सैटायर समझ में नहीं आएगा। जैसे कद्दू यहाँ पे मेटाफर, मतलब एटलीस्ट सिटी में कद्दू मेटाफर नहीं बन सकता है, या कद्दू जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए मेटाफर बन सकता है, जो एजुकेटेड है। जैसे बैंगन को उड़ीसा में बोलते हैं बेगुन, मतलब जिसका कोई गुण नहीं है इसलिए बैंगन है, और बैंगन सस्ता होना चाहिए, मतलब वैल्यूलेस है। तो वो सब अब मेटाफर नहीं बनेंगे, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ गया है। तो मेरा वैल्यू को लेके जो मुस्कान के लिए कुछ सवाल, मतलब एक तरीके से था ऐसे डायलॉग क्रिएट करने के लिए, वो था कि तुम व्यंग को कैसे लेते हो। जैसे रवीश कुमार कहते हैं व्यंग खत्म हो चुका है, हास्य रस जो है वो खत्म हो चुका है, और मुझे लगता है विजुअल आर्ट में भी हमने कभी बहुत सीरियसली कोई इमोशन को डिपिक्ट नहीं करते हैं, जैसे फिल्म में करता है कि हास्य रस आएगा, क्रोध आएगा, डिफरेंट इमोशंस बहुत स्ट्रांगली आएगा। आर्ट में ये सब बहुत पैसिव तरीके से आता है, लिटरेचर में वो दिखता है वो ये सब। तो आर्ट में भी हास्य या व्यंग, पता नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा कि जैसे भूपेन खक्कर के काम में या किस किस के काम में थोड़ा थोड़ा तुम्हें हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी, तुम ऐसे ठो ठो हो के हंस नहीं पड़ोगे, वहां पे बहुत सटल तरीके से आता है। मैं
जानने की कोशिश ये कर रहा था कि मुस्कान, तुम्हारे काम में क्या तुम व्यंग को एक माध्यम की तरह यूज कर रहे हो, जिसमें एक वैल्यू तुम वो वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए कुछ मतलब कर रहे हो, या व्यंग तुम्हारे लिए एक तरीका है जिसमें तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल के मुझे लगता है कि हमने सब फॉर एग्जांपल मोदी को, उसने बहुत सारे नॉनसेंस बोला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नॉनसेंस बोला है कि हम उस पे एक कटाक्ष करके व्यंग बना के उसको वैल्यू दे दिया है। अगर हम कटाक्ष नहीं करते या व्यंग नहीं करते, शायद वो कभी आता भी नहीं वो सरफेस में। तो बहुत बार व्यंग हो जाता है कि तुम वैल्यू ऐड कर देते हो, मतलब या व्यंग इटसेल्फ एक वैल्यू है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे काम के पर्सपेक्टिव में? समझ में आया ना? मतलब वैल्यू एक मीडियम है जिसमें हम एवेल्युएट करते हैं, या वैल्यू हम ऐड करते हैं व्यंग करके, या व्यंग इटसेल्फ एक वैल्यू है? हमें लगता है कि वैल्यू का एग्जिस्ट करना ही इटसेल्फ व्यंग है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वहां पे व्यंग्यात्मक बातें हैं। जब भी हम वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं वो व्यंग्यात्मक हो जाता है। जैसे कि वही हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि शहतूत के पत्ते को अगर सिल्क वॉर्म छेद कर रहा है तो तभी शहतूत का पत्ता बहुत ही वैल्यूबल हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो वैल्यू नहीं होता, वहाँ वैल्यू गायब हो जाता है। फिर सिल्क वॉर्म के लिए फिर कोकून बनाना वैल्यूबल हो जाता है। तो उस समय ऐसा आता है कि कोकून वैल्यू बन जाता है, सिल्क वॉर्म नहीं। और एक समय ऐसा आता है कि वो कोकून सोसाइटी के लिए वैल्यू हो जाता है, थ्रेड के लिए। तो किस तरीके से वैल्यू अपने आप में बन रहा है और किस तरीके से वैल्यू लुप्त हो रहा है, ये व्यंग अपने आप में बहुत ही न्यूट्रल है। मतलब तो वही है कि जब भी वैल्यू क्रिएट होता है तो वो अपने आप में एक सटायर का रोल देता है, आई थिंक। मुस्कान, विकास बोल रहा हूँ। यस सर। एक थोड़ा सा जिज्ञासा है आपके काम के प्रति। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार से, मैं काफी कलाकारों को वहां से देखता हूँ। व्यंग रस पे काम करना मतलब एक अपने आप में एक नया ये अपवाद, जिसको हम लोग मानते हैं अपवाद पे, वो भी महिला कलाकारों के व्यंग रस पे काम करते हैं। सो कई सारे कलाकारों को देखा है, उन्होंने जो नॉर्मल रसे होते हैं मतलब साहित्य में, और ये जो श्रृंगार रस है या भावना का है, और बहुत लोग वीर रस को भी लेके काम करते हैं। और काफी कलाकार वहाँ के हैं जो फेमस राइट कहानीकार वहाँ के, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु है, या हमारे पास के बनारस से प्रेमचंद जी हैं, इवन दिनकर जी के पोएम को लेके। तो ये सब जो वहाँ पे बोलते हैं कि घर के कहानीकार है, मतलब बिहार के लोग जो, और काफी उन लोगों को पढ़ते हैं और उनके कहानियों से सामाजिक संरचनाओं को लेके काफी लोग काम करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि आपका ये झुकाव जो व्यंग की तरफ है, और खासकर आप बिहार के उस क्षेत्र से भी नहीं है, बिहार में एक मिथिलांचल रीजन है, क्षेत्र है, जहाँ पे व्यंग काफी आम बोलचाल के भाषा में बहुत वो जानते हैं। मुरारी उस एरिया से वाकिफ है, उस एरिया से ही है। नहीं, तो मैं उनको भी मिथिलांचल से ही हूँ, अच्छा, पूर्णिया। आप भी मिथिलांचल से ही हैं। तो वहाँ पे आम बोलचाल की भाषा में व्यंग का काफी उपयोग होता है। जैसे अगर मिथिलांचल से हाँ जाए छिए कि वहाँ पूछते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ जाए छिए, तो हम अच्छा, उनको लगता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, तो फिर उनसे सटायर करते हैं अच्छा मुझे लगा आप जा रहे हैं। तो ये सब जो वहाँ लोकल जो आम बोलचाल की भाषा में वो लोग यूज करते हैं इन सब चीजों का, लेकिन कलाकारों में व्यंग का इस्तेमाल करना और इस बड़े मतलब समकालीन कला में बहुत कम लोग कर रहे हैं, खासकर युवा कलाकार में। तो ये जिज्ञासा या कहाँ से वो प्रेरणा मिली आपको, और हरिशंकर परसाई और श्रीलाल शुक्ला और बाकी जितने भी नाम आ रहे हैं व्यंग कलाकार कथाकारों के, उनका एक कनेक्शन कैसे बना? मतलब ये सारी चीजों का आना, मतलब कहीं ना कहीं जब हम मतलब अपने रीजनल जगह से निकलकर माइग्रेट होकर बाहर की ओर जाते हैं, तो हम हर जगह जो हमारे रीजनल से जो हम इन्फ्लुएंस होते हैं कि इस चीजों को हम ये कहते हैं, यहाँ पर कुछ और कहा जा रहा है। हमारे लिए कॉलगेट का मतलब दातुन होता है, पर यहाँ पे कॉलगेट है पर पेप्सोडेंट भी है, डाबरलाल दंत मंजन भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं।
और एक पॉलिटिक्स जहाँ से हम बिलोंग रखते हैं कि एक भाषा का एक अलग भाषा का एक अलग यहाँ पर स्ट्रगल है, जो एक एक्सेंट होता है फिर उसके बारे में, और फिर एक ट्रांसलेशन जो चैलेंजिंग आती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक खुद से ही निकल के आता है, जो फिर एक तरीके से व्यंग्यात्मक हो जाता है कि। और रेणु से मैं काफी प्रभावित हूँ, मैं काफी उन्हें पढ़ा है, तो वो भी हमारे काम में आता है, तो चीजें उसी तरीके से फिर नजर आने लगती है। तो मुस्कान, विकास के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो मैं ये समझूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि गांव से अगर हम कंपैरिजन करें शहर का, तो आपको शहर में व्यंग ज्यादा नजर आता है और गांव में जीवन है, क्योंकि गांव में जीवन है, शहर में जो चीज पहुंच रही है, आपका जो सब्जेक्ट लाइन है कोकून, उससे गांव में जीवन है जहाँ वो कोकून है, जहाँ पर पैदावार हो रही है सिल्क की। अल्टीमेटली जो शहर में पहुंच रहा है वो तो एक सिल्क है, जो एक मटेरियल है जिसकी वैल्यू लाखों में भी हो सकती है, और उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी उसको पहनने से होता है, लेकिन जो जीवन है वो गांव का, आप उसको शहर में जो अल्टीमेट प्रोडक्ट पहुंच रहा है उसको व्यंग की तरह देख रही हैं। एक्चुअली ये नीड की बात होती है कि मुझे लगता है कि जो जिसको नीड होता है वहाँ पे उसकी अप्रोच होती है, वो एक अपनी पैदावार होती है। यहाँ पर एक बातें ये कहा जा रहा है कि जैसे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो कि हम चीजें समझना चाहते हैं पर जो लैंग्वेज इशू होती है वो मैं उस तरीके से नहीं ले सक रही हूँ, और फिर एक बहुत सारी चीजें हो जाती है कि जिसे मैं लिटरल नहीं कहना चाहती, वो कहीं ना कहीं एक काफी निश शब्द है। जैसे कि एक टैबो एक ट्रॉमा होता है जो एग्जिस्ट करता है, पर वो शायद शब्दों के थ्रू अगर हम बोले तो वो काफी उसका कोई सीमित वो नहीं रहेगा, फिर उसकी जो असीमितता है वो फिर गायब हो जाएगी। काफी ये फीलिंग्स की चीजें हैं जो कि एक महसूस, ये नहीं कि गांव का जीवन अच्छा है शहर का, दोनों अपने अपने जगह एक इक्वल रोल अदा करता है। शायद आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज कहना था कि ये 10 मिनट में फिर से खत्म हो जाएगा, शायद हमारे पास और नहीं है सेशन। प्रणमिता है क्या ऑनलाइन? हाँ, तो मैं वो बोल सकती है। आप 10 बोलिए। मिनट आई थिंक ठीक है, हम लोग थोड़ी देर 5 मिनट और डिस्कशन करके फिर 5 मिनट में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट अगर आपको कुछ लाना है परिवर्तन और मुस्कान, तो आप लोग बोल सकते हो, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू द डिस्कशन फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी कैन कंक्लूड। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक कैसे समराइज करके, मुस्कान तुम्हारे लिए कुछ जो भी मतलब ऐसे सवाल किया था, नेक्स्ट सवाल मेरा भाषा के ऊपर ही था। भाषा मतलब हम जैसे रीजनल लैंग्वेज समझते हैं, जहाँ पे लैंग्वेज डोमेस्टिकेटेड होता है। तुमने एक जगह पे कहीं पे लिखा है कि भाषा एक जानवर की तरह है जो अचानक तुम्हें कहीं रास्ते में मिल जाता है, और तुम और एक जगह पे लिखते हो, एक ही जगह एक ही जानवर का सामना, जैसे कोई घर में, जैसे कोई घर के भीतर का शरीर। तो मुझे ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत एक तरफ से बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, क्योंकि वहां पे मतलब ये जो कह रहा है कि एक ही जगह एक ही जानवर का सामना, और उसका नेक्स्ट सेंटेंस है कि जैसे कोई घर के भीतर का शरीर। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई वुमेन आर्टिस्ट अपना डोमेस्टिकेटेड स्पेस में डोमेस्टिकेटेड लैंग्वेज के बारे में बोल रही है। जैसे तुम्हें मतलब वो जो घर के अंदर एक शरीर है और एक जानवर को बार बार मिल जाना, ये क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डोमेस्टिकेटेड स्पेस में नहीं, ये तो काफी लिटरल हो गया। घर के भीतर का शरीर, मैं कोकून की बात कर रही हूँ, तो कोकून कुछ भी हो सकता है। हम जो एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, ये सराउंडिंग, अगर ह्यूज लेवल पे यूनिवर्स अगर हम देखें तो यूनिवर्स के अंदर एक कोकून, अगर पृथ्वी देखें तो पृथ्वी एक कोकून का काम करती है। अगर हम कंट्री देखें, फिर क्षेत्र आता है, क्षेत्र के अंदर एक एरिया आता है, एरिया के अंदर एक घर आता है, घर के अंदर एक रूम आता है। काफी कोकून का कहीं से भी क्रिएट हो सकता है। जैसे आपने बोला भाषा, जैसे मैंने जो लिखा था, भाषा एक जानवर की तरह है जो कहीं भी मिल जाता है।
तो वही, अगर वो शब्द पॉलिटिकल नहीं भी बनता, अगर बन भी जाता है पॉलिटिकल, जब शब्द हमारे राजनीतिक बन जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज के डेट में वो टेक्नोलॉजी का रूप ले लेती है, जो शायद अपने आप काम नहीं करता, जिसे जब चाहे जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। सब अपना कोडिंग बनाता है, जिस तरीके से हम कुत्ता पालते हैं तो उसे जो सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो करते हैं, तो सबका एक अपना कोडिंग होता है। अब इतने सारे लोग वो अलग अलग यूसेज के कोडिंग बारे में से। ज्यादा हो जाता है, जैसे अभी जो आया था क्या वो कोर्स स्टडी ये का आया है, तो उसमें जो भाषा का डिबेट चल रहा है वो ज्यादा आ रहा है कि भाषा यूज कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। हम ये में जान और वही भाषा में मैं, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी मुझे लग रहा है खत्म हो जाएगा, तो उसी भाषा को लेकर मैं ये भी एक सवाल था कि जैसे आर्ट फील्ड के बारे में हम बात करते हैं, तो आर्ट फील्ड बहुत इंग्लिश डोमिनेटेड है, मतलब ये एक रियलिटी है। जबकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वहाँ पे स्कोप नहीं है दूसरे लैंग्वेज जानने के लिए, वो ऑब्वियसली स्कोप है, लेकिन उसके लिए टाइम मतलब पता नहीं कैसे होगा। तुम कैसे, हाउ डू यू सी योर सेल्फ उस डोमेन पे, कि तुम्हारे लिए हिंदी में या वो मैथिली इन्फ्लुएंस लाना, वो लोकल लैंग्वेज को लाना, ये वल्नरेबल खुद को बनाना है या एक पावर तुम फील करते हो उसको? जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ क्वेश्चन का जवाब देना मतलब, मान लीजिए अगर शब्द हमारे लिए थोड़ी मुश्किल पड़ रही है तो हम वो शब्द सुन पा रहे हैं, वो जो मतलब एक लाइफ में एक शैली बना है जीने का, जो एक भाषा बना है, वो लोग यूज करते हैं और वही हमारे लिए एप्रोप्रिएट हो जाता है, जिससे कि वो हमारे लिए एक नॉर्मल हो जाता है। तो पर हमारी जो सोच है, हम सोच को तो कैप्चर करके नहीं रख सकते। अगर हमारी सोच है टेबल पे बैठने का, तो हम टेबल पे बैठेंगे। सवाल उठता है कि हम टेबल पे बैठेंगे या नहीं। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज की बात हो रही है, तो किस लैंग्वेज की बात हो रही है? थॉट की बात हो रही है या फिर बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है? अगर लैंग्वेज की भी बात हो रही है तो बहुत सारी भाषाएं हैं। तो यहाँ पे ये है कि हम जो कम्युनिकेट कर पाते हैं तो हम उसे एक अलग अलग माध्यम में रखते हैं। डिपेंड करता है कि जो समझ पा रहे हैं वो किस भाषा में समझ पा रहे हैं। हाँ, जैसे मुझे याद आ रहा है तुम्हारे एमए का प्रेजेंटेशन जो था किरण नादर का म्यूजियम में, नोएडा वाला, जिसमें तुम बोल रहे थे लेकिन तुम्हारा जो रेफरेंस थे वो किसी को समझ में नहीं आ रहे थे वहां पे, एटलीस्ट जो तुम्हारे प्रोफेसर्स वगैरह थे, तुम जो परसाई कह रहे थे उन किसी को नहीं समझ में आ रहा था, यूडी वाले, जितना उनके एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा था, इसलिए तुम्हें कोई सवाल नहीं हो रहा था। तो मुझे वो लग रहा है कि कभी कभी हो, क्योंकि मैं भी डरता हूँ बहुत बार कि उड़िया लिटरेचर लाऊं या नहीं लाऊं, समझ में वो एक्स्ट्रा लेबर हो जाता है। लैंग्वेज हमें एक्सेस भी देता है, और कभी कभी ऐसा ना लग जाए कि लैंग्वेज कट कर दे, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, ये वहां पे हम जज भी करते हैं। जैसे लोग मुझे कहते हैं कि मैं आर्गुमेंटेटिव हूँ या वायोलेंट हूँ, वो मेरा तरीका है बोलने का, तो वो भी भाषा का पार्ट होता है, हमारे जेस्चर्स, हमारे बॉडी। एनीवे, फिर मैं दो सवाल था लेकिन पता नहीं, पहला ये था कि टेक्स्ट एज फॉर्म, जो हम बाद में बात कर लेंगे, और भाषा भाव के बारे में, तुम्हारे काम में जो भाव है और अभाव है, लैक और भाव, जो इमोशंस होते हैं। और मेरे लास्ट सेंटेंस यही था जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, और शायद आज जो केएनएम का टॉक है वो तुम्हारे पोइट्री से गया है कि फूल फूलना शुरू कर देंगे, और आज के टाइम पे वो, उसमें एक भाव है होप का, कि फूल फूलना, जैसे कि अभी कहा और हो गया, जैसे तुम मुझे बोलते हो कि बोला और हो गया सब, अब जैसे अच्छे दिन आ जाएंगे, मतलब आ गए और हो गया, अभी हो रहा है, और पता नहीं 2 मिनट में मुझे दौड़ने टाइप लग रहा है। तो तुम तो क्या कहूँ और मैं? हाँ, तो अब इस पे मैं क्या बोलूं? वो एक मतलब फूल जो, अब इससे क्या लिटरल मतलब, फूल जो बहुत ही सॉफ्ट है और कटोरा जो बहुत ही कॉन्क्रीट है। तो जहाँ पे एक तो आयरनी है ना कि होप भी है, होप भी है। हाँ, और वही पे है कि कटोरा बढ़ेगा, ये नहीं कि खाना बढ़ेगा। हाँ, कटोरा मतलब तुम्हारा कंटेनर बढ़ रहा है, मतलब पता नहीं, मुझे, मैं जब इसके बारे में सोच रहा था मुझे नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, डिजायर कहूँ, डिजायर बढ़ रहा है, या कंटेनर बढ़ रहा है, या जो कंटेंट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो और भूख बढ़ेगी, और भूख बढ़ रहा है ना, तुम्हारा कटोरा बढ़ रहा है। कटोरा हमेशा वो ना बुद्धिस्ट, ये जब भी कटोरा सुनते हैं वो बुद्धिस्ट बेकिंग के ये में आता है। अच्छा, जस्ट इंटरप्टिंग, हाँ, क्योंकि आज का डिस्कशन बड़ा अच्छा रहा और ऐसा लगा कि सबके
काफी इंटरेक्टिव रहा, जिसके लिए हम लोगों का टाइम भी कम लग रहा है और हम लोगों को मे बी फ्यूचर में और एक सेशन करना पड़ेगा, बट एनीवेज और कुछ नया लाने के लिए भी परिवर्तन को भी लग रहा है कि मैं लाऊं नहीं लाऊं नया डिस्कशन, क्योंकि टाइम कभी भी कट सकता है। तो ठीक है, लेकिन अच्छा रहा प्रेजेंटेशन भी, काफी प्रिसाइज और वो बना के रखा मुस्कान ने, और उसको लेके जो डिस्कशन रहा और काफी लोग आए जिन्होंने बात किया, तो इट वाज गुड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, काफी इंटरेस्टिंग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हाँ, फॉर क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब्रप्टली Thank कट you. जाए। एंड थैंक्स फॉर एवरीवन who joined us today. So next Sunday, hopefully we will come with another artist, and this session also we will put it in YouTube and share with you so that you can share with your friends who could not join us today. तो अच्छा रहा मुस्कान, तुम्हारा काम देख के एनालाइज करके और डिस्कशन, और परिवर्तन ने भी कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लाए, और बहुत लोगों ने फ्रॉम द व्यूअर्स